میں ایک صاحب کے گھر گیا جس کا 13,000 مربع زمین تھی. 13,000 مربع نا, 1300 مربع بھول گیا, نہیں 13,000, 13,000 نہیں 13. میں میرا اگر حافظہ ٹھیک کم کرے تو میں انشاءاللہ بات ٹھیک کروں. 13,000 مربع زمین تھی. بیٹا ابھی تک زندہ ہے, بیٹا زندہ ہے, اس کے پاس 1 فٹ زمین نہیں ہے, اور بیٹا اس وقت نوکر کے گھر, ملازم کے گھر رہتا ہے اور وہی اس کو روٹی دیتا ہے. بیٹا ملازم کے گھر رہتا ہے, وہی روٹی دیتا ہے. 1 فٹ جگہ نہیں ہے اور 1 انچ جگہ نہیں ہے. 13,000 مربع, اور وہ تھی کہ جس میں گھوڑی دوڑے نا شاید صبح سے شام لگ جائے, دوڑتے 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 ایسے ایسے. اور یہاں لاہور میں جو ان کا گھر تھا, اس گھر میں جو ٹریک بنا ہوا تھا, گھر کے اندر واکنگ ٹریک وہ بنا ہوا تھا, وہ 1.25 گھنٹے میں جا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آتا تھا, صحت اور فٹنس کے لیے. کتنا بڑا گھر ہوگا؟ 1 انچ جگہ نہیں ہے, 1 انچ جگہ نہیں. سب کچھ ختم ہو گیا, اور سب کچھ ہواؤں میں, فضاؤں میں. میں نے جا کے دیکھا ان کا گھر اندر سے, آج سے 90 سال پہلے جو کرٹن تھے, پردے تھے, اور کھڑکیوں کی ڈیزائننگ تھی, اور سکاٹنگ تھی کھڑکیوں کی, اور لکڑی کی پیلنگ اور لکڑی کا کام, اور ٹائلیں. اللہ اکبر. جب دوسری گھر 1 فلور پہ دوسرا فلور بنتا تھا تو اس کو ماڑی کہتے تھے, ماڑی. اور بستی گاؤں میں, شہر میں مشہور ہوتا تھا ماڑی والا گھر. دوسرا فلور جب 1 کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ بن جاتا تھا. پر سورت قریش یہ نہیں ہونے دیتی, لکھ لینا میری بات کو, نہیں ہونے دیتی. اطعمہم من جوع, جو تیری نسلوں کو بٹھا کے کھلاؤں گا اگر بھوکے ہوں گے, پلاؤں گا, پہناؤں گا, اور پھر خوف نہیں دوں گا. الا ان اولیاء اللہ, سن لو ذرا غور سے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا میں اپنے ولیوں کو خوف نہیں دوں گا. یحزنون, اور حزن کہتے ہیں انزائٹی, ڈپریشن, ٹینشن, نہیں دوں گا. یا پھر سورت قریش میں فرمایا کیا, اطعمہم من جوع وآمنہم خوف. اب بولیں دیکھیں, میں اپنے ولیوں کو خوف نہیں دوں گا, اور سورت قریش پڑھنے والے کو خوف نہیں دوں گا. وہ خوف دنیا کا کوئی بھی ہو. بیٹی کی شادی کیسے ہوگی, اولاد جوان ہو رہی ہے, اولاد کا مسئلہ کیسے ہوگا, آنکھیں ترس رہی ہیں. شادی ہو گئی ہے, اولاد کیسے ہوگی, بچہ دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں. اولاد ہو گئی ہے, پلے کی کیسے, پل گئی ہے, جوان ہو گئی ہے, اس کا گھر ہو, کوئی کمرہ ہو, اس کے لیے کاروبار, کوئی رزق ہو, اس کے لیے کوئی سواری ہو. یہ سارے غم ہیں. یہ خوف ہے, خوف ہے. میں جا رہا ہوں لٹ نہ جاؤں, میں جا رہا ہوں مجھے کوئی لوٹ نہ لے, میری جیب نہ لے لے, مجھ سے موبائل نہ چھین لے, مجھ سے سواری نہ چھین لے, کوئی بھی چیز. یہ خوف ہے جو ساری زندگی ہمارے ساتھ ہے. یہ خوف ہے. وآمنہم من خوف. اس خوف سے جو نکل آیا اس کا تعلق سورت قریش سے ہے. آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ جو کھانے کے بعد 3 بار کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھ لے, الحمدللہ, یہ بھی دعا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, یہ بھی دعا ہے. اکیلا الحمدللہ پڑھ لے تو سمجھ لے دعا پوری پڑھ لے. جو کھانے کے بعد دعا پڑھ لے اور پھر صرف 3 بار سورت قریش پڑھے,
مجھے یہاں یہ چوک میں ایک صاحب ملے، میرے یہ سامنے مسجد میں نے نماز پڑھی، بڑی پرانی بات، 4-5 سال پہلی بات، مجھ سے کہنے لگے اس عمل سے میرا 25 کلو وزن کم ہوا ہے، میں اتنا موٹا تھا، 25 کلو وزن کم ہوا ہے۔ کھانے کے بعد جو بندہ 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھ لے، 3 بار سورۃ قریش کھانے کے بعد پڑھے، جاگ رہے ہیں، یوں نہ بیٹھے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے تو اپنا جو کرنا تھا کر لیا، نیند آ جا تیری مہربانی، چاہے آپ مرضی سے آئے ہیں یا پھڑے پھڑائے آئے ہیں، جیسے بھی آئے ہیں، لیکن یوں نہ بیٹھے۔ کھانے کے بعد 3 بار کیا پڑھنا ہے؟ اگر یاد نہیں ہے نا، آج جلدی جلدی یاد کر لیں، ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ اتنا ان پڑھ ہے کہ اپنا نام نہیں پڑھ سکتا، اپنا نام نہیں لکھ سکتا، تو کوئی حرج نہیں، قرآن کا ایک نور ایسا ہے کہ قرآن کے نور میں نام اللہ پاک دل میں اتار دیتا ہے، قرآن کا ایک اپنا نور ہے۔ جو پہلی دفعہ سورۃ قریش کھانے کے بعد پڑھے گا، ایک دفعہ پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کھانے کی زہر سے بچائیں گے، کھانا بیماری نہیں بنے گا، دکھ نہیں بنے گا، تکلیف نہیں بنے گا، کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، بلڈ پریشر، شوگر، کوئی تکلیف نہیں بنے گا۔ اور اس کھانے سے جو طاقت ملے گی، ذرا غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، آنکھیں کھول کے سنیے گا، جو اس کھانے سے طاقت ملے گی وہ عبادت، اعمال اور نور پہ خرچ ہوگی، اور وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا، اور اس کھانے سے جو طاقت ملے گی اس سے عبادت، اعمال اور نور بنے گا اس کھانے سے۔ اور اگر اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے تو زہر بھی اثر نہیں کرے گا، کھانا صحت اور شفا بن جائے گا۔ اور جو دوسری دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا کھانے کے بعد، دوسری بار سورۃ قریش پڑھے گا کھانے کے بعد، فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو وسیع دسترخوان عطا فرمائیں گے، وسیع دسترخوان، وسیع دسترخوان، یعنی پھر رزق بھی اللہ وسیع کریں گے اور دسترخوان بھی وسیع کر دیں گے۔ اور جو تیسری اور آخری دفعہ سورۃ قریش کھانے کے بعد پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو ایسے وسیع دسترخوان عطا فرمائیں گے۔ کتنی نسلوں کو؟ کتنے؟ 7 نسلوں کو میرا رب ایسے وسیع دسترخوان عطا فرمائے گا۔ اب 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھنے میں کون سا وقت لگتا ہے؟ اچھا آپ ایک دفعہ کریں، ایک دفعہ سورۃ قریش پڑھیں اور سیکنڈ چیک کریں، جی 3 سیکنڈ ایک آواز ہے، ایک آواز ہے 5 سیکنڈ، ایک 6 سیکنڈ کی، 4 سیکنڈ، چلو ہم 5 کی بات کرتے ہیں۔ اچھا نہیں، اب آپ پھر چیک کریں، اب آپ پھر چیک کریں، پڑھیں، خود چیک کریں۔ اچھا جی، اب 7 والے بھی آ گئے، فیصلہ نہیں ہوا، اچھا ایک بار پھر چیک کریں گے۔ اب 5 والے آ گئے، بس اب فیصلہ ہو گیا، 3 دفعہ بھی پڑھ لی، 5 والے بھی آ گئے۔ مجھے ایک چیز بتائیں، ایک دفعہ پڑھنے پہ 5 سیکنڈ، دوسری دفعہ پڑھنے پہ 5 سیکنڈ، تیسری دفعہ پڑھنے پہ 5 سیکنڈ، 15 سیکنڈ زندگی میں کھانے کے بعد نہیں، اور جس پہ اتنے وعدے بھی اتنے ہوں، تیرا کھانا صحت بنے، تیرا کھانا شفا بنے، تیرا کھانا تیرے لیے راحت بنے، تیرا کھانا تیرے لیے عبادت بنے، تیرا کھانا تیرے لیے تسبیح ذکر بنے، تیرا کھانا تیرے لیے سجدے تلاوت بنے، اور تیرا کھانا تیری نسلوں کے لیے دسترخوان بنے، اور تیرا وسیع دسترخوان بنے، اتنا بھی نہیں بولے؟ اور ایک بات بتاؤں،
इसको जवाल नहीं है, इसको जवाल नहीं। कोई देखे टायर थे अब इतने से हो गए इतने से हो गए बेचसे, इसका जवाल नहीं है। किन मन क्यों? कुरान अल्लाह का वादा है और कुरान के साथ अल्लाह के वादे हैं। अल्लाह हमेशा है, कुरान हमेशा है। अल्लाह हमेशा है, वही हमेशा है, और वही की बरकत क़यामत तक मौजूद है, क़यामत तक मौजूद है। 15 सेकंड का एक अमल जो आपको और आपकी नस्लों को तवंगरी दिला जाए, 15 सेकंड का एक अमल। मुझे एक साहब कहने लगे, अब्बे की कब्र पे जाके रोता हूं, अब्बा जी माल आपके दौर में तो बहुत था, हमारे दौर में माल कहां चला गया? अब्बा जी अपनी बरकतें साथ ले गए, हमारे लिए कुछ ना छोड़ गए। हाय हाय। कहते जाके रोता हूं बाप की कब्र। मुझे 2 बंदों ने एक बात कही, एक ऑफिसर था, उसने एक बात कही कि मैं अब्बे की कब्र पे जाके कहता हूं, अब्बा जी मैं तो जवान था, मेरी अल्लाह ने जवानी थी और मुझे इश्क का जो है भूत सवार था, आप तो मुझे रोक देते, बेटा इश्क के अंजाम अच्छे नहीं होते, आप तो रोक देते, आपने मुझे ना रोका। आज मैं शादी कर बैठा और मेरे गले में जो है सांपों का हार पड़ गया और मैं दिन रात की मुसीबतों परेशानी में मुब्तला हूं। कहा अब्बे की कब्र पे जाके रोता हूं और अब्बे को शिकवे करता हूं। या मुझे उस बंदे ने कहा था या फिर एक और बंदे ने कहा कि मैं गुर्बत तंगदस्ती के शिकवे वालिद को जाके करता हूं। अब्बा जी अपनी बरकतें जो आपके साथ थी कहां गई? आप खाते थे और लोग खाते थे, तवंगरियों के दरवाजे थे, माल के दरवाजे थे, अब्बा जी कहां गए? अब्बा हमारे लिए ना छोड़ के गए, सब कुछ तो अपने साथ लेकर गए। अब्बा जी की कब्र पे जाके रोता हूं। मैं कहता हूं 3 दफा सूरत कुरैश पढ़ लो, 3 दफा सूरत कुरैश पढ़ लो, 3 बार, 3 बार सूरत कुरैश पढ़ लो। एक मेरे पास और भी है, इन्होंने अच्छा किया याद दिलाया। कहते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है माहे सफर में सारे घर वाले मिलकर 1.25 लाख कर लें? इजाजत है और रियाती पैकेज है, करीम है ना। सारे घर वाले मिलके माहे सफर में 1.25 लाख, 1, 2, 3 1.25 लाख भी कर सकते हैं, वरना 1 1.25 लाख कर लें, वरना 1 1.25 लाख। कहता मैं अब्बे की कब्र पे जाके रोता हूं, शिकवे करता हूं, पर मेरा विजदान है, मेरा यकीन है, मैं इंशाअल्लाह इत्मीनान से यह बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, खाने के बाद 3 बार सूरत कुरैश आपकी नस्लें आपको शिकवा इंशाअल्लाह नहीं करें, इंशाअल्लाह नहीं करें। और अगर माह सफर में मिलजुल के भी चलो, सूरत कुरैश पढ़ ली तो बरकतों के तो दरवाजे खुल गए फिर। और खाने के बाद 3 दफा सूरत कुरैश, आपकी नस्लें आपको शिकवा नहीं करें। ये नहीं कहेंगे कि अब्बा कुछ छोड़ के ही जाते हैं, अपने साथ तो तवंगरी थी, आपके साथ तो मालदारी थी, अपने साथ तो क्या था, मेरे लिए यही फक्र, यही फाका, यही गुर्बत, यही तंगदस्ती, यही मेरे नसीब और यही मेरे मुकद्दर, कुछ तो मेरे लिए छोड़ के जाते। 3 बार सूरत कुरैश कौन सी देर है, कौन सी मुश्किल है? अच्छा पहले क्या करें हम? पहले हम यूं करें, इसको आदत बना लें, फिर एक वक्त आएगा ये आदत इबादत बन जाएगी। आदत, सारे कहें, आदत क्या बन जाएगी? इबादत बन जाएगी। पहले आदत बना लें, फिर दिल में उतरेगी ये बात, फिर जुबान पे आएगी, फिर दिल में आएगी, फिर जज्बों में आएगी, फिर रूह में चली जाएगी, और जब रूह में चली जाएगी यही इबादत बन जाएगी। तो सोचें, जिस सूरत कुरैश के अंदर ये फायदे हैं, ये तासीर है, उसको फौरन याद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कौन बंदा ऐसा है जिसने कहा कि मैंने
तस्बीह खाने में सूरत कुरैश के कमालात सुन के फिर याद की थी। किस किस ने याद की? देखें कितने लोग बैठे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने ऐसे हैं जिन्होंने तस्बीह खाने में सूरत कुरैश के कमालात सुने और कमालात सुनने के बाद याद की। अच्छा, कितने दिनों में याद हो जाती है? याद करने वाले बताएं, अपना मुशाहिदा, अपना तजर्बा। वो कहते हैं 7 दिनों में, इन्होंने कहा 5 दिनों में, ये है 1 दिनों में। अच्छा हाँ, 1 दिन में, 1 दिन में याद हो जाती है। और किसी को लगी हो तो याद हो जाती है। और 15 सेकंड का अमल बता रहा हूं मैं, ज्यादा लंबा चौड़ा अमल नहीं है। और 15 सेकंड का अमल आपकी नस्लों को तवंगरी मालदारी दे दे, तो क्यों आप इसको और हम इसको भूल जाएं? राज के बाद भूलेंगे हैं? नहीं, आप भूल जाएंगे। अब मुझे पहले यकीन दिलाएं, कैसे यकीन दिलाएं? अब इस पे वाकया सुनो। कसूर के हमारे एक शेख साहब थे, वो मुझे उन्होंने नसीहत की थी। कहने लगा अगर शादी के लिए मुर्गी लेनी है तो 1.25 और 1.5 किलो से वजन की ज्यादा मुर्गी ना लेना, बाकी उसमें चर्बी ही चर्बी होगी। उन्होंने एक मत दी थी, नसीहत की थी। शेख साहब बड़े सियाणे थे। तो मुझसे कहने लगे कि मैं इतने मन मुर्गी लेनी है, अगर किसी से शादी के लिए कहता हूं तो उससे कहता हूं कि 1.25 किलो से बड़ी मुर्गी मैं नहीं लूंगा। तो कहने लगा शेख साहब हो गया, कह पैर खड़ा। उन्हीं के लफ्जों में मैंने लफ्ज कहा पैर खड़ा, यानी पैसे खुद मुझे दे, तेरे पैसे मेरे पास अमानत होंगे। अगले कहते हैं कि आप दे, वो कहते ना तू दे। कसूर के शेख साहब थे, कह रहे तू दे, इतने पैसे रख गिरवी, मेरे पास पड़े रहेंगे तेरी अमानत। अगर तूने 1.25 किलो से बड़ी मुर्गी और उसमें तो सारी चर्बी होती है दी, तो वो तेरे पैसे चले जाएंगे। कहने लगे मेरे साथ मुर्गी वाले अक्सर सौदा नहीं करते। वो शेख यूसुफ साहब थे। कहने लगे शेख साहब आ गए। कहने लगे शेख साहब सलाम अलैकुम, चाय पिए पानी पिए, सौदा ना सौदा ना। उनकी कौन सी बात सुना रहा था? हाँ हाँ, उनकी जो बात मैं सुना रहा था शेख साहब की, शेख साहब को मैंने ये चीज सुना दी। हम एक सफर में थे, शेख साहब साथ थे, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। तो मैंने उनसे कहा शेख साहब 1 दफा पढ़े ये फायदा, 2 दफा पढ़े ये फायदा, 3 दफा ये फायदा। कह रहे फिर हाथ पड़ा, ऐसे करते थे हाथ ना, उंगली ऐसे भी करते थे, हाथ पड़ा। मैंने हाथ पकड़ा दिया। कहने लगे कहने लगे बताया उस वक्त है जब बूढ़ा हो गया हूं, बताया उस वक्त है जब बूढ़ा हो गया हूं। कहने लगे कि तेरी मेहरबानी, मेरा हाथ पकड़ के बैठे बातें कर रहे हैं। बताया उस वक्त है जब बूढ़ा हो गया हूं, तेरी बारी बात, तेरी मेहरबानी, तूने बता। अब ये बता कि मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी नस्लें फकीर ना हो, तो इससे बड़ी ताकतवर चीज है? जिंदगी तो गुजर गई, अब तो जिंदगी शाम है, बोनस पे चल रहा हूं। जब बोनस खत्म, मैंने कहा शेख साहब आप नियत करने के अल्लाह तू इस चीज पे कादिर है, मुझे जिंदगी की आखिर में पता चला है, तो मुझे सारी जिंदगी में इसकी नियत कर लें, सारी जिंदगी में अल्लाह बरकत देगा। मैंने कहा कर लें इसकी नियत। कुछ अर्सा पहले मैं कसूर में गया, तो मैं ना कुछ गलियां ऐसे फिर रहा था, तो वहां एक साहब मिले। मैंने कहा शेख साहब तो फौत हो गए, पता था मुझे। तो मैंने कहा उनकी, उसने कहा जी रब ने माशाअल्लाह उनकी नस्लों को संभाला हुआ है। उसने जो लफ्ज मुझे कहा संभाला हुआ है, संभाला हुआ। तो 3 दफा सूरत कुरैश कौन सा मुश्किल है? अब बताएं कौन याद करेगा? वाह, और 1 दिन में यार पीछे पड़ जाए, मोबाइल पे निकाल के सामने रखें, कागज पे लिख के, या सूरत कुरैश जहां है ना मोबाइल पे उसको फोटो खींच लें।
हैं? मोबाइल पे उसका फोटो खींचते, उसको सामने रखें, गाड़ी चलाते हैं, किचन में हैं खवातीन और किसी काम में हैं आप, और उसको रखें जहन में, और फिर जहन में उसको रख के पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। और सूरत कुरैश तैयार, और अल्लाह की रहमत बेकरार, और नस्लों के लिए रिस्क सदाबहार। सूरत कुरैश तैयार, और अल्लाह की रहमत बेकरार, और नस्लों के लिए रिस्क सदाबहार। और वो शहनशाह है, वो करीम। देखो बात सुनो, माल के साथ अल्लाह के वादे नहीं है, अमाल के साथ वादे हैं। इसको फिर दोहराऊंगा ये बात, ये कभी ना भूलिएगा, माल के साथ अल्लाह के और अमाल के साथ अल्लाह के वादे हैं। और अगली बात सुने, दुनिया बकदरे मुकद्दर है, दीन बकदरे मुशक्कत है। जितनी अपने ऊपर मुशक्कत डालते जाएंगे, मुशक्कत डालते जाएंगे, मुशक्कत डालते जाएंगे, उतना अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए और अपनी जिंदगी के लिए राहतें, रहमतें, कुशादगियां और आफियतें लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे। माल पे वादे नहीं है, माल पे वादे हैं, माल पे वादे नहीं कि जिसका माल ज्यादा होगा हम उसकी नस्लों को खिलाएंगे, इस पे वादे नहीं है। अमाल पे वादे हैं। क्यों? अमाल का ताल्लुक वही से है, और हदीस भी वही है और कुरान भी वही है। हदीस भी वही है और वही है। माल पे वादे और अमाल पे वादे हैं। अल्लाह के हबीब के वादे हैं, मेरे अल्लाह के वादे हैं, वादे हैं। और अल्लाह वादों का सच्चा है। जो मेरा रब सच्चाई को पसंद करता है, वो खुद सच्चा कैसा ना हो, मुमकिन ही नहीं। जो मेरा वादा रब वादा खिलाफी को ना पसंद करता है, वो खुद मेरा रब वादा खिलाफ हो नहीं सकता। नस्लों के लिए वादा, नस्लों के लिए वादा, करवा ले वादे नस्लों के लिए, करवा ले वादे नस्लों के लिए। क्यों? और नस्लें अगर फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती, बदहाली में हों, और ये फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती, बदहाली कुफ्र तक ले जाती है बंदे को, बेहयाई तक ले जाती है, बददियानी तक ले जाती है। और पता नहीं ये फक्र और गुर्बत और तंगदस्ती कहां से कहां ले जाती है। कब्रों में फिर सिसकते रहते हैं, कब्रों में कहते रहते हैं, कब्र वाले बेबस होते हैं। अपनी जिंदगी का सफर, अपने निजाम, अपनी जिंदगी का सफर हमेशा वादों के साथ करें। अल्लाह उसके हबीब के वादे हैं अमाल पे, अल्लाह और उसके हबीब के वादे हैं अमाल पे। और अल्लाह सच्चा, उसका हबीब सच्चा, अल्लाह सच्चा, अल्लाह के वादे सच्चे, और अल्लाह का सारा निजाम सच्चा। याद रखिएगा, 15 सेकंड का अमल है, लेकिन 15 सेकंड के अमल के पीछे जो वादे हैं, जो तासीरें हैं और जो कमालात हैं, वो मैं आप नहीं गुमान कर सकते, वो मैं आप नहीं सोच सकते। 15 सेकंड के वादे हैं, अमल है, और उसके वादे 15 सदियों नहीं, 15 लाखों सालों, करोड़ों सालों के हैं, और अरबों सालों के वादे हैं उसके पीछे। आप तो पढ़ के भूल जाएंगे, आप खाना खा के भूल जाएंगे, आपने परसों क्या खाया था, उससे अगले पिछले क्या खाया था, मेरे ख्याल में मुझे आपको याद नहीं होगा। खाते जाते हैं, भूलते जाते हैं, पर अल्लाह पाक ये 3 दफा सूरत कुरैश पढ़ी को नहीं भुलाएगा। फरिश्ते भी लिखेंगे, अल्लाह के रजिस्टर में भी है, रब के खातों में भी है, और अल्लाह के इल्म में भी है, और अल्लाह के निजाम में भी है। ये नहीं भूलेंगे और कभी नहीं भूलेंगे, ये नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? वादा का ताल्लुक मानने से है। किससे है? मानने से है। वादे का ताल्लुक मानने से है, समझ आए ना आए।
कितने अल्लाह के वली थे ऐसे, कितने अल्लाह के वली थे ऐसे जिन्होंने उम्र के एक हिस्से में पगड़ी पहनने से मना किया है, हालांकि सुन्नत है, जुल्फे रखने से मना किया है, हालांकि सुन्नत है, अंगूठियां पहनने से मना किया है, हालांकि हदीस में अंगूठियों के बाकायदा वाकयात है कि मेरे कमली वाले की इतनी अंगूठियां थी। हजरत शाहुल हदीस के खादिम थे मज़ाहिरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुझे खुद बताया कि मेरे कमली वाले, लेकिन कितने ऐसे हैं कमली वाले की अंगूठियां, लेकिन कितने अल्लाह के दोस्त ऐसे हैं तो मैं इस उम्र से पहले जुल्फे ना रख, इस उम्र से पहले पगड़ी ना पहन, इस उम्र से पहले अंगूठियां ना पहन। क्योंकि जरूरी नहीं कि मुर्शिद की हर अदा को लिया जाए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक एक उम्र के हिस्से के साथ होता है, एक हाल के साथ होता है, एक उम्र के हिस्से के साथ होता है। हमारे बड़ों के मिजाजों में हिकमतें बसीरतें थीं, हमारे बड़े जानते हैं, और यह चीज उसको नसीब होगी जो मुर्शिद की मान के चलेगा, मुर्शिद के इशारों को भी समझ जाएगा, इशारों को भी समझ जाएगा, इशारों को भी। उस दिन एक साहब ने अंगूठी पहनी हुई थी, मैं कहा किससे पूछ के तूने अंगूठी पहनी है? उसने उतार के जेब में डाल दी, उन्होंने कहा जी बस आइंदा नहीं। हर चीज के एक वक्त होता है। आप पहली क्लास के बच्चे को फिजिक्स की किताब पकड़ा दो, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, फलां चीज पकड़ा दो, कह किताब है, वो भी किताब है, नहीं अभी इसको कायदा चाहिए। बड़ों की हिकमतें होती हैं, इन चीज से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज का वक्त होता है। लिकुल्ल शैइन अजल, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है और चीज वक्त के साथ चलती है। क्यों कहा जाता है कि यह तांबे का कड़ा पहना नजर ना आए? पहनना है सेहत की नियत करके, लेकिन पहना नजर ना आए किसी शक्ल में, बिल्कुल नजर ना आए, मर्द हो या औरत हो। असल चीज मन है, समझ आए ना आए, अकल माने ना माने, शऊर एहसास इदराक साथ देना देना। इसी तरह सूरत कुरैश को मानना है कि 15 सेकंड के अमल से क्या होगा। मैं ऐसा कहता हूं तो ऐसा कर, 15 सेकंड सिर्फ गालियां दे, बता क्या होगा। किसी को ना दे, बस खाने के बाद 15 सेकंड गालियां देनी शुरू कर दे, देख क्या होता है। जब गालियों का असर होता है तो इसी तरह खैर का भी असर होता है, नूर का भी असर होता है, कुरान का भी असर होता है। नूर, कुरान नूर का नूर है, अनवारात का अनवारात है, उसमें उसका असर होता है और जिंदगी में होता है, उसका असर होता है और जिंदगी में होता है, और हैरत अंगेज होता है। बस जज्बा हो कि मैंने याद करना है, और जज्बा हो याद है तो मैंने पढ़ना है, जज्बा हो तो मैंने पढ़ना है, तो इसको भूलना नहीं। और अगर मैं बूढ़ा भी हो गया हूं, घर में मेरा दर्जा बाप का है, दादे का है, नानी का है, नाने का है, दादी का है, दादे का है, तो मैंने शर्म नहीं करनी। मैं तालिब इल्म बन जाऊंगा, मैं मोहताज बन जाऊंगा, मैं छोटा बन जाऊंगा, और मैं सूरत कुरैश को याद करूंगा। मैं उस वक्त ये शर्म नहीं मेरे को, अब मैं शर्म नहीं करूंगा। अब अपने बच्चे, बूढ़े, जवान, या अपने पोते पोती और या अपने बेटे से कहूंगा कि बेटा मुझे याद कराओ, अब मैं शर्म नहीं करूंगा। क्यों? इस 15 सेकंड के अमल के साथ मेरे और मेरी नस्लों के वादे छुपे हुए हैं। इस 15 सेकंड में कोई खजाने छुपे हुए हैं, इन 15 सेकंडों में कोई खजाने छुपे हुए हैं, और वो खजाने मैंने हासिल करने हैं। खजाने छुपे हुए हैं, और वो खजाने मेरी जिंदगी की जरूरत, मेरे मन तन की जरूरत, मेरी नस्लों की जरूरत है। तो जब इतने बड़े खजाने छुपे हुए हैं, फिर शर्म किस चीज का, फिर हिजाब किस चीज का? नहीं, मैं पूरे जज्बे के साथ इसको याद करूंगा, और पूरे जज्बे के साथ याद करके अपनी नस्लों के लिए, अपने लिए रिस्क, दौलत, इज्जत, बरकत, रूहानियत और राहत के दरवाजे अल्लाह के खजानों से खुलवाऊंगा, और फिर अल्लाह से कहूंगा कि अल्लाह
میرا کام کرنا تھا، اب وعدے پورے کرنا تیرا کام ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ ہمیں گیس بدہضمی تھی وہ ختم ہو گئی، کئیوں نے بتایا کہ ہماری طبیعت ہر وقت خراب رہتی تھی وہ ٹھیک ہو گئی، کئیوں نے بتایا کہ موٹاپا ختم ہو گیا، کئیوں نے بتایا پیٹ ختم ہو گیا، بڑھا ہوا، بے شمار اس کے فائدے۔ آپ میں سے کوئی بتائے کسی کو سورت قریش اگر فائدے ہوئے ہیں تو وہ بتائیے گا، نہیں ہوئے نہ بتائیے گا، یا آپ بتائیں مانی کسی کو اس کے فائدے ہوئے ہیں تو بتائیں۔ 10 کلو کہتے ہیں وزن میرا کم ہوا، اور جی سفر سے آسانی، حادثات سے بچے، جی کہلے اللہ بہترین کھانے کھلاتے، بیٹھ جائیں جی۔ 9 کلو وزن کم ہوا اور گیس نہیں ہوتی، اب بولے 9 کلو وزن کم ہوا اور گیس نہیں ہوتی، اور کون؟ ہاں اچھے سے اچھے کھانے ملتے ہیں کہتے ہیں، کہہ رہے میرے گھر والے 3 سال سے وزن کر رہے ہیں، ان کا وزن 114 کلو سے 78 پہ آ گیا، 78 کلو پہ آ گیا، 103 کلو وزن، 3 سال سے کر رہے ہیں۔ اور جی کھانے پینے سے کیا کہتے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ہاں اللہ پاک بہترین کہتے ہیں مرضی کے کھانے کھلاتے ہیں اس عمل سے، جی اور ہاں کون بتا رہا؟ جی جی ادھر والوں کی آواز نہیں پہنچتی، شور ہے بہت ہے۔ آپ پتہ نہیں کیا اتنی لمبی بات نہ کہو، مختصر کہہ دو، کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ ترجمہ کر دو، شور ہے۔ اچھا جی اور بتائیں، مختصر بات کریں۔ ہاں جی کھانے کے بعد کے فائدے بتائیں۔ کھانے کے بعد 3 دفعہ سورت قریش، کھانا ہضم ہوتا ہے، ہاں ہضم ہوتا ہے کھانا، جی ہاں جی آپ کیا بتا رہے ہیں؟ کھانا بوجھ نہیں بنتا، چلو بس 15 سیکنڈ میں پوری دنیا اس عمل کو کر رہی ہے، اور پوری دنیا نے سورت قریش کو یاد کیا، اور ویسے بھی سورت قریش جلدی جلدی یاد کر لیں، سفر کا مہینہ آ گیا، گھر والے مل جل کے آپس میں تقسیم کر لیں، آپ اتنا پڑھ لیں تو اتنا پڑھ لیں، میں اتنا پڑھ لوں، وہ اتنا پڑھ لیں، میں اتنا پڑھ لیں، آپس میں تقسیم کر لیں۔ چلو جی تقسیم کر لیا، پڑھنا شروع کر دیں۔ کیا خیال ہے سورت قریش یاد کریں گے؟ کوشش کریں زیر زبر سے یاد کریں، صحیح یاد کریں، اور جتنا صحیح یاد کریں گے، زیر زبر سے یاد کریں گے، اتنا زیادہ اس کی تاثیر ہوگی، اس کا کمال ہوگا، اور اس کی ماشاءاللہ قوت ہوگی، اس میں طاقت ہوگی۔ وعدوں پہ یقین ہے، وعدوں پہ یقین ہے، میں نے وعدوں پہ یقین کرنا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وعدے ہیں، رب سچا ہے، رب کے وعدے سچے ہیں، اور رب کا سارا نظام سچا ہے، اور سچے وعدوں کے میں سچا یقین کروں گا، خود بھی پلوں گا، خود بھی صحت مند رہوں گا، اور نسلوں کو بھی پالوں گا، اللہ کے خزانوں سے پلواؤں گا، اور ان کو صحت مند اور 7 نسلوں کی تونگری کے رب سے فیصلے کراؤں گا،
ये 7 नस्लें तो मेरे आपके समझने के लिए हैं। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वो करीम शहनशाह है, वो 70 नस्लों को पाल के दिखाता, 70 नस्लों को पाल के दिखाता। आज भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो हस्बी नस्बी असली लोग हैं अरब में रहते हैं, आज भी सांप उनको काटे तो सांप मर जाता है। वो एक गार में सांप ने डसा था, कमली वाले का सर मुबारक गोद में था और इतनी तकलीफ हुई कि आंसू गिरे और हुजूर के ऊपर आंसू गिर पड़े। आंख खोली, मेरे आका ने लुआब अपना मुबारक लगाया और लुआब से दर्द खत्म हो गया। आज भी उनकी नस्लों में मेरे पास एक हस्बी नस्बी सैयद आता है, हस्बी नस्बी है फकीर सैयद। क्यों? मेरे कमली वाले ने आपने सादात के लिए दुआ की है, अल्लाह मेरी सच्ची नस्ल, मेरी सच्ची आले रसूल का अल्लाह रिज़्क थोड़ा रखना। सैयद है, फकीर सैयद है, दुर्वेश सैयद है। फकीर से मुराद मंगता फकीर सैयद है। कहते हैं हमारे खानदान का बच्चा भी जिसको कुत्ते ने काटा है उस पे थूक दे तो कुत्ते का काटा ठीक हो जाता है। हमारे खानदान का क्यों? अमाल पे वादे हैं, अमाल पे वादे, और वो वादे नस्ल दर नस्ल चलते हैं, नस्ल दर नस्ल चलते हैं, नस्ल दर नस्ल। एक दुर्वेश कहते हैं कि मैं हज पे गया और मैंने जम्माल जमल से यानी ऊंट वाला, उससे कोई गलती हुई, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, सब नूर नूरानियत रूह रूहानियत मुझसे चली गई, हर चीज खत्म, हर चीज खत्म। मैं रोता रहा, कई अल्लाह के वलियों के पास गया। एक अल्लाह के वली ने फरमाया, एक माई है कुछ दिनों के बाद ना काबा के हतीम के करीब आती है, मजजूब है, उससे कह देना तेरा काम हो जाएगा। काबा में हतीम है ना, उसके करीब एक माई आती है, उससे कह देना। तो कहने लगा मैं इंतजार करता रहा। दूसरे तीसरे दिन माई आई, मजजूब थी। मैंने कहा मेहरबानी कर, मेरा सब कुछ चला गया। और तो फरमान लगी तूने जमाल को थप्पड़ मारा था, तुझे पता नहीं वो सच्चा सैयदा था और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद में से था, जा ठीक हो जाएगा। तो कहा मैं उठा, उस बंदे को तलाश करते करते उस जवान से माफी मांगी और फिर उस मजलूम खातून के बोल अल्लाह की बारगाह में ऐसे कबूल हुए कि मेरे दिल में फिर नूर विलायत जागा। वो जो हुजूरी और हाजरी मुझसे छिन गई थी सब वापस आ गए, सब वापस आ गए। तो सूरत कुरैश याद कर ले, जिंदगी का सफर आसान हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। और इसके तो और बड़े फायदे हैं, मुश्किलात के लिए, सवारी के लिए, हिफाजत के लिए और अजीब फायदे हैं, झगड़ों के लिए, झगड़ों की आग बुझाने के लिए, नफरतों को खत्म करने के लिए, इसके तो फायदे ही फायदे हैं, इसके तो कमाल ही। फैसला कर ले कि आज के बाद कोई खाना हो और मैं खाने के बाद सूरत कुरैश भूल जाऊं, मैं उस लम्हे से अल्लाह पहले से तौबा करता हूं और तेरी तौफीक मांगता हूं। अल्लाह तो सूरत कुरैश मेरी जुबान और जज्बों के लिए कबूल कर ले। और इसकी तासीर एक मैंने तस्बीह खाने के मिंबर से सुनी है, गौर से सुने, ये बात भी जरा तवज्जो तलब है। इसकी तासीर मैंने तस्बीह खाने के मिंबर से सुनी है। या अल्लाह एक वो है, एक ये है, ये भी दे पर अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। अल्लाह कहेगा अच्छा तो मुझे अब मेरी शान के मुताबिक मांगता है, तो मेरी शान ये तारे को क्या पता है, इसका इल्म ही कहां है। मैं अपनी शान मैं जानता हूं, इसको क्या पता तो दो चार बातें करके उठ जाता है। मेरा इल्म मुझे पता है। हाँ, सुभानक ला इल्म लना, तुम्हें क्या पता।
जो मैं तुम्हें दे दूं वही है, इल्ला मा अल्लमतना, मैं जो दे दूं वही है। अल्लाह कहता है बस ठीक है, 3 दफा सूरत कुरैश को मैं करोड़ों अरबों सूरत कुरैश के बराबर फवायद, फजाइल, बरकत और तासीर दूंगा। 3 दफा तू पढ़, बाकी मैं अपनी शान के मुताबिक इसका अजर भी दूंगा, इसका नफा भी दूंगा, इसका फायदा भी दूंगा, इसकी तासीर भी दूंगा, इसकी बरकत भी दूंगा, और बरकत नहीं इसकी बरकत दूंगा। तो अल्लाह से कह दें कि या अल्लाह, एक मैंने तस्बीह खाने से इसके फायदे सुने थे, और एक फायदे वो है जो तेरे इल्म में है, या अल्लाह अपने इल्म के मुताबिक अता फरमा। अल्लाह बड़ा करीम, उसका इल्म वसी, और वो शान करीमी इल्म के मुताबिक जब देता है तो फिर जिंदगियां, तो फिर क्या नस्लों की नस्लें ही पल जाती हैं, नस्लों की नस्लें ही पल जाती हैं, नस्लों की नस्लें ही पल जाती हैं। आज मेरे पास एक साहब आए, मुझे कहने लगे, एक पहली मजलिस में कहने लगे कि ये पजीरो पजारो जब नई नई आई थी, मेरे ये 84-85 के दौर में गालिबन आई थी, इसी दौर में, तो ये जीप नुमा, तो कहने लगे मेरे वालिद के ऊपर जो है फायरिंग हुई, कोई 15-20 किलोमीटर गाड़ी दौड़ती रही, पीछे फायरिंग करते रहे। कहा कि मेरे वालिद ने आंखों से देखा गोलियों के आगे रोटियां आ जाती थी, गोलियों के आगे रोटियां आ जाती थी। कहने लगे जब जज के सामने मेरे वालिद पेश हुए कि हमने उन पे मुकदमा किया और गाड़ी देखी जज ने, तो कहा, जज कहता है मैं नहीं मानता, ये छलनी हो चुकी है गाड़ी, और तू बंदा बाबा कहता है कि मुझे एक गोली नहीं लगी। वो सखी घराना है, उसके वालिद सखी थे, उसका दादा सखी था, 3 नस्लें तो मैं जानता हूं। मेरे पास वो बंदा जो आया बैठा था आज, कहता है मेरे वालिद के ऊपर फायरिंग हुई, करते रहे, दुश्मनी थी, गाड़ी भागती रही, पीछे फायरिंग करते रहे, गाड़ी चलनी हो गई। कहा जो गोली मेरे वालिद की तरफ आती थी उसके आगे रोटी आ जाती। रात के जिस हिस्से में, दिन के जिस हिस्से में मेहमान आया है, उन्होंने मेहमान को चारपाई दी है, खाना खिलाया है, सुलाया है, पानी पिलाया है, उसको चैन सुकून दिया है, उसको चैन सुकून दिया। रोटियां सामने आके गोलियों के आगे ढाल बन जाती थी, आड़ बन जाती थी, रोटियां बुलेट प्रूफ बन जाती थी, रोटियां। मैं कह रहा हूं ये 3 दफा सूरत कुरैश इसी तरह नस्लों के काम आती है। बलाओं, आफतों, मुसीबतों, परेशानियों, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों के सामने ऐसे सूरत कुरैश आगे आ जाती है कलाम इलाही ताकत के साथ, और वो मुसीबतें, परेशानियां, आफतें, फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती और मुश्किलात, मसाइल जो आने होते हैं, अल्लाह की कलाम सामने आके इसके लिए ढाल बन जाती है। और अमल सिर्फ कितने सेकंड का? 15 सेकंड का। 15 सेकंड, 15 सेकंड, 15 सेकंड। और हमारे खाने में अमूमन बहुत ज्यादा वक्त लगता है, आजकल तो वैसे ज्यादा वक्त लगता है, और इतना वक्त तो खाने में लगाएं, सिर्फ 15 सेकंड लगा दें। अच्छा, इसका एक और तजर्बा हुआ है जो मुझे बाद में हुआ, मुझे नहीं हुआ, मुझे लोगों ने बताया। सीखता रहता हूं आप हजरात से हर वक्त। कई लोगों ने बताया, क्योंकि ये मैं साल से बता रहा हूं, अब ये गौर से सुनिएगा जिन्होंने बताया। मुझे एक नहीं, कई लोगों ने बताया, कई खतों ने बताया, कई तहरीरों ने बताया, कई मुलाकातों ने बताया। क्या? कि हमारा रिस्क मशकूक था लेकिन छोड़ नहीं सकते थे। सूरत कुरैश की बरकत ने हलाल रिस्क के इतने दरवाजे खुलवाए कि हराम रिस्क खत्म हो गया। हलाल रिस्क के दरवाजे खुलवाए। अजीब बात बताई। एक ने बताया, दूसरे ने बताया, फिर दूसरे, कहीं पढ़ने को मिला, कहीं सुनने को मिला। सुनते 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 एक यकीन हुआ
اچھا، سورت قریش کے 3 دفعہ پڑھنے کی یہ تاثیر بھی ہے جو میرے مشاہدے میں نہیں آئی تھی. مجھے آپ مخلصین نے سکھایا کہ میں حرام رزق میں مبتلا